بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سچی کہانیوں میں خوش آمدید۔ ہم آپ کو سبق آموز اور حقائق پر مبنی ایسی کہانیاں سناتے ہیں جس سے نہ صرف آپ کو زندگی کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں معلومات ملتی ہے بلکہ آپ اپنے ارد گرد پھیلے کرداروں کو اچھی طرح سمجھ پاتے ہیں۔ ہماری کہانیوں کا مقصد آپ کو آگہی دینا ہے، اس لیے کسی بھی کہانی کے بارے میں کچھ بھی لکھنے سے پہلے ہماری پوری کہانی کو سن لیجیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ جب میری شادی ہوئی تھی، دیور امیر اعظم 9 سال کا تھا۔ ساس وفات پا چکی تھی۔ میں اسے اپنے بچوں کی طرح پالتی رہی۔ وہ بھی مجھے بھابھی کی بجائے آپا کہتا تھا۔ خدا نے مجھے 2 بیٹوں سے نوازا تھا۔ میرے شوہر میکینک تھے، اچھا کما لیتے تھے۔ ہمارا گزر بسر ٹھیک ٹھاک ہو رہا تھا۔ امیر اعظم 18 سال کا ہوا تو میں بیوہ ہو گئی۔ اللہ نے ایک ناگہانی حادثے میں میرے جیون ساتھی کو ہم سے ہمیشہ کے لیے جدا کر دیا اور ہم لوگ لاہور آ گئے۔ ان دنوں ہمارے علاقے کے حالات خراب تھے، روزگار کا ملنا مشکل تھا۔ ایک ہم زبان بھائی کی مدد سے اعظم کو ایک تعمیراتی کمپنی میں کام مل گیا۔ اس کمپنی کا مالک بہت دولت مند شخص تھا جس کے بڑے بڑے پروجیکٹ اسلام آباد، راولپنڈی اور لاہور میں چل رہے تھے۔ یہ ایک بزرگ آدمی تھا، محنتی اور شریف طبیعت تھا۔ اس نے ملازمت پر رکھنے سے قبل اعظم سے تھوڑی سی بات چیت کی تو وہ اسے ٹھیک بندہ لگا۔ اس نے کہا، میں تمہیں دفتر میں کچھ پڑھنے لکھنے کا کام سونپ رہا ہوں، کام اچھی طرح مینیجر سے سمجھ لینا، تنخواہ کا بھی وہی تم کو بتا دے گا۔ تنخواہ آپ جو بھی دیں گے مجھے منظور ہے، مگر میں دور دراز علاقے سے آیا ہوں، میری بیوہ بھابھی اور ان کے 2 بچے بھی ہمراہ ہیں۔ ہمارا بڑا مسئلہ رہائش ہے، اگر آپ یہ مسئلہ حل کر دیں تو مہربانی ہوگی۔ افسر صاحب بولے، ٹھیک ہے، رہائش کا مسئلہ میں حل کر دیتا ہوں۔ ہمارے بنگلے میں ایک سرونٹ کوارٹر ہے، تم اپنی بیوہ بھابھی اور بچوں کے ساتھ وہاں رہائش اختیار کر سکتے ہو۔ افسر صاحب نے جب ہماری داستان حیات سنی تو انہوں نے امیر اعظم کی تنخواہ بھی معقول مقرر کر دی۔ وہ میٹرک پاس تھا، مزدوری کی بجائے اس کو دفتر کا کام دیا۔ اعظم نے جب مجھے یہ خبر دی کہ صاحب کی کوٹھی کے سرونٹ کوارٹر میں ہماری رہائش کا بندوبست ہو گیا ہے تو میں کھل اٹھی۔ جلدی سے بیگ میں بچوں کے کپڑے رکھے، امیر اعظم اور راشد بھائی کے ساتھ ہم کوٹھی پر پہنچ گئے۔ جب میں نے کوارٹر میں قدم رکھا تو میرا دل باغ باغ ہو گیا۔ کشادہ 2 کمرے، صاف ستھرے اور عمدہ بنے ہوئے، غسل خانہ اور ایک باورچی خانہ بھی ملحقہ برآمدے میں بنا دیا گیا تھا۔ چولہا، چوکی، چارپائیاں، بستر، غرض ہر شے میسر تھی۔ اللہ مسبب الاسباب ہے، اس نے ہمارے رہنے کا بہت اچھا بندوبست اتنی جلدی کر دیا کہ میں شکر ادا کرتے نہیں تھکتی تھی۔ ایک روز بیگم صاحبہ نے مجھے بلا کر پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ خولا بی بی نام ہے۔ امیر اعظم میرا دیور ہے، مجھے آپا بی بی کہہ کر بلاتا ہے۔ بہت اچھی بات ہے، وہ کہنے لگی، میں بھی تم کو آپا بی بی کہوں گی۔ دراصل میں اکیلی ہوں، میرا جی گھبراتا ہے۔ تم میرا کام کرو گی تو کھانا اور تمہاری تنخواہ تمہیں مل جائے گی اور میری تنہائی بھی دور ہو جائے گی۔ بچوں کو پڑھانا چاہو تو ہم انہیں اسکول میں داخل کروا دیں گے۔ اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی تھی؟ مجھے کام مل رہا تھا، تنخواہ اور کھانا بما رہائش سبھی مسئلے حل ہو رہے تھے۔ شام کو جب امیر اعظم چھٹی ہوتی تو آ جاتا۔ امیر اعظم کی تنخواہ صاحب نے معقول رکھی تھی۔ میں نے صاحب جی کے گھر کا کام سنبھال لیا، کھانا بنایا، کپڑے استری کیے اور ہر وہ کام جو وہ کہتی میں بخوشی سلیقے سے کر دیتی۔ وہ مجھ سے بہت خوش تھی، کہتی تھی کہ تم جیسی ملازمہ قسمت والوں کو ملتی ہے، واقعی تم اچھے گھر کی ہو، تبھی تمہاری عادتیں اچھی ہیں۔ میں نے بتایا، بیگم صاحبہ، میرے والد کا سیبوں کا باغ تھا، خاوند اور سسر بھی سیبوں کے تاجر تھے۔ سسر اور والد کی وفات ہو گئی تو باغ اجڑ گئے، مجبوراً ہمیں دربدر ہونا پڑا۔ اللہ تعالی ہمیں ثابت قدم رکھے اور ہر وقت شکر کی توفیق دے۔ وہ میری باتوں سے بہت متاثر ہوئی۔ میں 5 وقت نماز پڑھتی، صبح تلاوت کرتی۔ وہ کہتی کہ میں نماز بھول گئی ہوں،
मुझे भी सिखाओ ताकि मैं भी पढ़ूं। नमाज से सुकून मिलता है, आप ज़रूर पढ़ा करें। मुझसे किचन में आकर बातें करती और मुझसे रिवायती खाने बनाना भी सीखती। मैंने जान लिया कि बेगम साहिबा को किसी की अशद ज़रूरत है। सख्त तन्हाई का शिकार थी। अंदर से ये लड़की बहुत दुखी थी। लड़की इस वजह से लिख रही हूँ कि इसकी उम्र बमुश्किल 16-17 साल थी, जबकि इसके शौहर की उम्र 65 से भी ऊपर होगी। खुदा जाने इनके वालिदैन ने क्यों इतनी कम उम्र फूल सी बच्ची को इतने उम्र रसीदा आदमी से ब्याह दिया। शायद दौलत की वजह से। उसका नाम हसीना था। किस्मत की धुनी थी कि दौलत में खेल रही थी। किसी शय की कमी नहीं थी, मगर वो खुश न होती। शौहर ना सिर्फ उम्र रसीदा था, बल्कि इस कदर मसरूफ शख्स था कि उसे घर में बीवी को वक्त देने की फुर्सत नहीं थी। वो घर पर सिर्फ इतवार को नाश्ता करता, वरना नाश्ता ऑफिस में और दोपहर का खाना घर से बेगम का ड्राइवर उनको देने दफ्तर चला जाता था। साहिब का खाना मैं अलहदा बनाती। कादिर साहब मुझसे खुश थे क्योंकि मैं उनका खाना उनकी हस्बे मंशा तैयार कर देती। कुछ दिन के बाद इनका ड्राइवर बीमार हो गया। इन्होंने अमीर आज़म से दरियाफ्त किया, क्या तुम ड्राइविंग जानते हो? बोला, जी साहब, मेरे पास गाड़ी चलाने का लाइसेंस है, ड्राइवर रह चुका हूँ। वो बहुत खुश हुए, कहने लगे, आज तुम मेरे ऑफिस की ड्यूटी छोड़ो, मुझे कोई और मिल जाएगा। मेरी कंपनी के ड्राइवर के साथ नहीं, बल्कि तुम्हारे साथ घर जाऊंगा। तुम्हारा टेस्ट भी हो जाएगा कि कैसी ड्राइविंग करते हो। 8 बजे के करीब अमीर आज़म साहब को लेकर गाड़ी में घर आ गया। साहब उसकी ड्राइविंग से मुतमईन हो गए। कहने लगे, आज से घर की गाड़ी के ड्राइवर तुम होगे। इस तरह अमीर आज़म ने कंपनी जाना तर्क कर दिया और अब वो घर में रहने लगा। बेगम साहिबा ने कहीं जाना होता, घर का सौदा सल्फ मंगवाना होता या कादिर साहब को दफ्तर पहुंचाने और दोपहर को खाना देने जाना होता, ये तमाम काम अमीर आज़म के सुपुर्द हो गए। अमीर आज़म को भी सहूलत हो गई, उसे खाना घर का मिलने लगा। वो क्वार्टर में आराम कर लेता। घर में रहने से अमीर आज़म और बहुत से घरेलू काम कर दिया करता। फारिग बैठने की उसकी आदत नहीं थी। हम भाभी देवर ने साहब का घर इतनी अच्छी तरह संभाल लिया कि वो छोटे छोटे मसाइल से बेनियाज हो गए। दोनों मियाँ बीवी हमारी कद्र और इज्जत करने लगे। हम भी पूरी दयानतदारी और खुलूस से उनकी खिदमत करते। घर में अमन सुकून था। हमारी जिंदगियां भी पुरसुकून हो गईं। मेरे बच्चे स्कूल जाने के काबिल हो गए। इन्होंने एक करीबी औस दर्जे के स्कूल में दोनों बच्चों को दाखिल करवा दिया। मैं उनको पैदल स्कूल पहुंचा आती। अमीर आज़म घर में होता तो वही लाने और पहुंचाने का काम कर देता। हमारी जिंदगियों में ठहराव आ चुका था। एक रोज़ बेगम ने बातों बातों में बताया, आपा बीबी, जैसे तुम पर वक्त पड़ा है, मेरी वालिदा पर भी इसी तरह का वक्त पड़ा था। वालिद बीमार हो गए तो कमाने के काबिल नहीं रहे। भाई गलत दोस्तों में घर की जिम्मेदारियों से बेनियाज हो गया और पढ़ाई छोड़ दी। वालिद की बीमारी पर खर्चा बहुत आता था। हम 5 बहनें थीं, किसी की शादी नहीं हुई थी। अम्मी बहुत परेशान थी क्योंकि वालिद कादिर साहब की कंपनी में काम करते थे। वो भी बीमार पड़े थे। कादिर साहब जब उनकी इयादत को घर आए तो हमारा हाल देखकर अफसुर्दा हो गए। इनके बच्चे नहीं थे, बीवी फौत हो गई थी और दूसरी शादी नहीं की थी। मुझे देखा तो पसंद कर लिया, मगर मुँह से कोई बात नहीं की। वालिद की बीमारी का खर्चा उठा लिया। 3 साल वो बीमार रहे। कादिर साहब ने हमारा बहुत साथ दिया और फिर मेरी वालिदा ने ये सोचकर कि बेटी इस घर में खुश रहेगी, मेरा रिश्ता कादिर साहब से कर दिया। उन्होंने बाकी बहन भाइयों की खातिर मेरी कुर्बानी दे दी, मगर मेरे दिल ने कभी कादिर साहब को बतौर शौहर कबूल नहीं किया। मेरा और उनका उम्र का फ़र्क बहुत ज़्यादा था। इनके पास मुझे देने के लिए ना ही मोहब्बत है और ना ही वक्त है, और तो और मुझसे बात करने तक का टाइम नहीं। तुम देख रही हो ना, मैं सोने के पिंजरे में कैद एक परिंदे की तरह हूँ। कभी कभी दिल चाहता है कि इस पिंजरे को तोड़कर उड़ जाऊं। फिर बहनों और माँ का ख्याल आता है, जिनको हर माह वो खर्चा देते हैं। मेरी बूढ़ी माँ का इलाज मुआवजा करते हैं। मेरी एक बहन की शादी इन्हीं की कोशिशों से अच्छे घराने में हो गई, मगर अभी 3 और रहती हैं, कॉलेज पढ़ रही हैं, खर्चा भी कादिर साहब देते हैं।
एक मेरी कुर्बानी के बदले इन्होंने कितनी जिंदगियां बना दी। यही सोचकर दिल को समझौते पर राजी कर लिया है, वरना तो दिल घुटा घुटा ही रहता है। आप लोग आए हो तो जरा खुश रहने लगी हूँ, वरना तो बात करने को तरसती हूँ। बेगम साहिबा की बातें सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। वो इतनी खूबसूरत थी कि उनका जीवन साथी उनका हम उम्र को शहजादा होना चाहिए था, मगर वारी किस्मत इनकी तकदीर में बूढ़ा बादशाह लिखा गया। कादिर साहब दिल के बादशाह थे, कई ज़रूरतमंदों के काम आते, मगर उन्हें अपने पेशे से ही इन्हिमाक था। इस बात का एहसास नहीं था कि अपनी कमसिन बीवी को भी वक्त देना चाहिए। जब से अमीर आज़िम घर में आया था, मैंने महसूस किया था कि बेगम साहिबा खुश रहने लगी हैं। अब वो मेरे देवर में कुछ इस तरह दिलचस्पी लेती थी कि मेरा दिल आने वाले किसी खतरे के डर से धड़कने लगता। अमीर आज़म खूबसूरत सफ़ेद रंगत वाला सेहतमंद और कदावर नौजवान था। शायद बेगम साहिबा के तसव्वुरात में ऐसा ही कोई हसीन नौजवान होगा। वो मेरे देवर को हसरत की निगाह से तकने लगती, यहाँ तक कि अमीर आज़म की पेशानी पर पसीना आ जाता। वो कोशिश करता कि बेगम साहिबा उसे से कम बुलवाएं, जबकि वो उनका ड्राइवर भी था। वो जब चाहे उसे बुला सकती थी, ताहम अल्लाह का शुक्र है वो घर से कम ही निकलती थी। इन्होंने बस हम लोगों से दिल लगा लिया था। बहरहाल रफ्ता रफ्ता बेगम साहिबा की मेहरबानियाँ बढ़ती गई, ख़ास तौर पर मेरे देवर अमीर आज़िम पर। उसे बिन मांगे जेब खर्च देती, सौदा सल्फ से जो रकम बचती वो वापस नहीं लेती। तनख्वाह के अलावा इतनी मराआत कि हमारी सारी तनख्वाह बची रहती। सर्दियाँ आ गई तो दिन छोटे हो गए, रात जल्दी हो जाती। साहब और देर से घर आने लगे, तब वो हमारे क्वार्टर में आकर बैठ जाती, अंगीठी जलाने को कहती, फिर हमारे दरमियान बैठकर आग तापती, कहती जब तक साहब नहीं आ जाते मुझसे बातें करो। मैं कभी बच्चों को सुला रही होती, वो मीर आसिम के साथ बातें करती और कहती, अगर बातें करना नहीं आती तो अपने बचपन का कोई किस्सा ही सुना दो। जब तक मेरे बच्चे सोते मेरा देवर बेचारा गांव के किस्से इधर उधर की बातें करता रहता। एक दिन वो नहाने गई तो गुसल खाने से धड़ाम की आवाज़ सुनाई दी। अमीर आज़म बरामदे में बैठा अपनी साइकिल साफ कर रहा था। मैं किचन में थी। बेगम साहिबा की चीख सुनकर मैं दौड़ी। सोचा गुसल खाने का दरवाज़ा अंदर से बंद हुआ तो कैसे देखूं कि क्या हुआ है, मगर फिर देखा तो दरवाज़ा खुला हुआ था। मैंने और अमीर आज़म ने मिलकर उन्हें बिस्तर पर लिटाया। उनकी टांग में फ्रैक्चर हो गया था, हिल नहीं सकती थी और दर्द भी हो रहा था। उस रात साहब कहीं काम से गए हुए थे, वो दूसरी सुबह आए। हम सारी रात देवर भाभी अपनी मालकिन के पास बैठे रहे। वो हाय हाय करती रही, ना खुद सोई ना हमें सोने दिया। सुबह साहब आ गए और उनको डॉक्टर के पास ले गए। एक्सरे करवाए। खुदा का शुक्र कि चोट ज़्यादा नहीं लगी थी, जिस्म में कोई फ्रैक्चर नहीं आया था। उस दिन के बाद अमीर आज़म घबराया रहने लगा, कहता मेरा दिल करता है यहाँ से चले जाएं, मैं अब यहाँ रहना नहीं चाहता। दिल में तो मुझे भी ऐसा ही लगता था, मगर फिर हम यहाँ से कहाँ जाते। बिलाखिर एक दिन इन्होंने अपने दिल की बात कह दी, जिस पर अमीर आज़म ने उन्हें समझाया कि बीबी मैंने साहब का नमक खाया है, नमक हरामी नहीं कर सकता। आप अपने साहब को सर का ताज समझिए और मुझे नौकर। मैं आपके दर का मुलाजिम हूँ, आप अपना मुकाम न भूलिए, न मैं कभी अपनी औकात भूलूंगा। इसी में हमारी भलाई है। इनका दिल टूट गया। कुछ दिन भुजी भुजी रहने लगी। मैंने पूछा, बेगम साहिबा क्या आप हमसे नाराज हैं? बोली, नहीं, बस दिल परेशान है। मैं कादिर के साथ रहना नहीं चाहती। ये ज़रूरत की शादी थी, मैं इसे तोड़ना चाहती हूँ। तुम लोग मेरा साथ दो। तलाक लेकर मैं माँ के घर नहीं जा सकती, वरना मेरी बहनों के घर खराब हों। मैं चाहती हूँ कादिर से तलाक ले लूँ और अमीर आज़म से शादी करके दिली खुशी के साथ घर बनाऊँ। उसकी बात सुनकर मैं परेशान हो गई। मैंने कहा, ऐसा मुमकिन नहीं है, आप अपना घर आबाद रखिए। इन्हीं दिनों साहब को बैरून मुल्क जाना पड़ा। मेरे बड़े भाई का फ़ोन आ गया कि हम लोग फ़ौरन वहाँ पहुँचे, क्योंकि बड़े चचा का इंतकाल हो गया है। हमें जाने का बहाना मिल गया। सब लोग भी कुछ दिन के लिए इंग्लैंड चले गए।
یوں اللہ نے ہم غریبوں کی بھی عزت رکھ لی اور ان امیروں کی بھی جنہوں نے برے وقت میں ہمیں سہارا دیا، چھت دی، حلال رزق کا وسیلہ بنے۔ نہ وہ ہم سے دل برداشتہ ہو کر گئے اور نہ ہم ان سے شرمندہ ہوئے۔ میں خدا سے یہی دعا مانگتی ہوں کہ اے خدا ہماری عزت رکھنا، ہم کو اس امر کی توفیق نہ دینا کہ ہم کسی سے بددیانتی یا غداری کریں، خاص طور پر اپنے محسنوں سے۔ اللہ نے ہماری سنی، شکر ہے کہ بیگم صاحبہ وہاں خوش رہیں، کیونکہ خوشی اور غم بانٹنے والی اللہ کی ذات ہے۔ مگر بیٹی کا رشتہ کرتے وقت ماں باپ کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ رشتوں میں عمر کا فرق اتنا نہ ہو کہ بیٹی ساری زندگی ان خوشیوں کے لیے ترستی رہ جائے جن کا خواب ہر لڑکی دیکھتی ہے۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔